Hello, children. I welcome you all to the video lecture series by Winning Edge. And in today's video, we are going to talk about mensuration. Mensuration is a very important chapter for your examination because from this chapter, we see every year certain questions are definitely present. So, mensuration hota kya hai? Mensuration is, if in simple words I want to put it, it's basically your area, perimeter, volume. Okay, these are the three basic things that are there. All right, perimeter comes in under one dimensional thing, area comes in the two-dimensional, and volume comes in the three-dimensional. And in this video, you know what, I'm going to explain you all the formulas, all the concepts which are related to 2D and 3D figures. Okay, before that, but if you haven't liked the video, if you haven't subscribed to the channel, please make sure you do that. And if you have any kind of feedback for the video, please put it down in the comment section. And if you want to master this chapter, if you want to master the concept of it, make sure you watch this video till the end. Now let's get started without wasting any time, and let's see what is there for us inside this video. So first thing here, let's I've already briefed you about the meaning of mensuration. I've already told you about 2D, 3D shapes. Okay. Now in 2D shapes, if I were to say 2D shapes, so basically there is square, there is rectangle, there is triangle, circle. All right. But if I want to talk about the 3D shapes, then the 3D shapes include you have different kind of things like 3D, if I would want to say, something which can be felt as carved out. For example, a ball. A ball is something which has three dimension, length, breadth, height, all you can say, or a cuboid or something like that. Ice cream cone हो गया, football हो गया, bricks हो गए. So these come under 3D shapes, जिसको हम महसूस कर सकते हैं. If I draw a rectangle on a paper, I cannot feel it. But if there is a cuboid kept, I can feel its shape. Okay, so that's the difference here. I hope you have understood the difference between these two. Now let's see what is there on the next slide. So next slide में again वही हमारे पास I've sorted out simply things for you कि 2D figures में क्या होता है हमारे पास और 3D figures में क्या होता है. Now 2D figure में सबसे पहले we are going to talk about rectangle. Rectangle, as you can see right here on your screen. A rectangle basically कुछ भी नहीं होता है. It's just a simple figure जिसमें एक side long होती है, एक side short होती है. जो longer side is called as length, the shorter side is called as breadth. Okay, then the sum of all the angles in the rectangle is 360 degree, और इसका हर एक angle जो होता है बेटा, it's always 90 degree. All right, to find out its perimeter we use this formula which is 2 bracket l plus b, length और breadth को add करो फिर 2 से multiply कर दो, because perimeter होता क्या ultimately, perimeter is sum of all the sides. कभी भी कैसा कोई क्वेश्चन है जिसमें फेंसेस की बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है, you have to simply add up all the sides. That's what perimeter is. ठीक है. If they ask you the area of this particular figure, that is rectangle, then you know it is very well length into breadth. So I hope this first figure is very clear to you. Now let's look on to the next one. Next one we have square. Square में क्या होता है हमारे पास? Square rectangle का we can say compact form है. इसमें कोई भी side longer नहीं है. It has all the sides equal. Okay, and this is called a square. अब इसका area जो होता है, इस side square. Side का हम क्या कर देंगे? Square कर देंगे तो area बन जाएगा. और अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज 4 टाइम्स साइड. राइट, बिकॉज चार साइड है, चारों साइड को ऐड कर दो, उसका पेरीमीटर बन गया. वेरी सिंपल. आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होना चाहिए. यस, आई एम गोइंग फास्ट इन द वीडियो बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फास्ट. यू डोंट हैव एनफ टाइम. तो अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है तो डेफिनेटली यू कैन स्लो इट डाउन एंड वॉच इट आउट. ओके, नेक्स्ट फिगर दैट वी हैव हियर इज सर्कल. अब सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल आपको सबको पता ही है. व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन इवन? सो सर्कल में बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट यू टू सी. नंबर 1, सर्कल का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं ऑब्वियसली. और जो इसकी बाउंड्री होती है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं. इट हैज अ स्पेशल नेम व्हिच इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. नाउ प्रीवियसली हमने देखा था बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोल रहे थे, पर सर्कल के केस में बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं. ओके, सी से सर्कल, सी से सर्कमफेरेंस. या नाउ सेंटर ऑफ सर्कल से बाउंड्री तक, दैट इज सर्कमफेरेंस तक, जितना डिस्टेंस होता है उसे आर से डिनोट किया जाता है, व्हिच इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है. और अगर दो रेडियस एकदम स्ट्रेट लाइन में लग जाए तो उन्हें बोला जाता है डी फॉर डायमीटर. ओके, दो रेडियस टुगेदर बट इन अ स्ट्रेट लाइन, okay, at an angle of 180, then it is called a diameter. So very simply, diameter जो हो गया 2 times radius हो गया. ठीक है. अब जो perimeter था सर्कल, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 2 into pi into r. 2 is 2 only. Pi is a constant. Pi constant है, मतलब इसकी कोई वैल्यू होती है. इसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे 22/7 या फिर 3.14, कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं. है तो बेसिकली एक ही. 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हो तो it gives you 3.14. So this is the formula for circumference. Now let's say इसका एरिया निकालना है. यहाँ पे तो लेंथ ब्रेथ कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेडियस है. एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर.
दैट इज पाई आर स्क्वायर वी कॉल इट. सो आई होप आपको सर्कल के बारे में समझ में आ गया. कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लव टू एक्सप्लेन इट आउट टू यू. अब इसमें कभी कभार बेटा कुछ क्वेश्चंस आते हैं व्हिच आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू. कभी कभार वो क्या करते हैं, दो सर्कल आपको दे देते हैं, ठीक है. आई एम अनेबल टू मूव दिस सर्कल. लेट्स डू वन थिंग. ये मान लो एक सर्कल हो गया हमारे पास, फिर गलत हो गया. ओके ये सर्कल बन गया हमारे पास बाहर एक बड़ा सर्कल, ठीक है. अभी क्या होता है, समटाइम्स यू नो दे आस्क यू द एरिया व्हिच इज इन बिटवीन द टू सर्कल्स. ये दो सर्कल्स के बीच में रिंग एरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है. अब रिंग एरिया निकालने का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है. इट इज वेरी ऑब्वियस कि मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा पेपर है या बड़ा सर्कल है, ठीक है. उसमें से अगर तुम कैंची लेके अंदर वाला सर्कल काट दोगे देन ऑब्वियसली द बाउंड्री इज लेफ्ट आउट. या सो वेरी बेसिक, दैट इज एरिया ऑफ द बिगर सर्कल. मान लो उसका रेडियस बड़ा आ रहा है और अंदर वाले का छोटा आ रहा है रेडियस, तो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को सबट्रैक्ट कर दो, इट विल लीव यू विद द बाउंड्री. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इनफैक्ट 3D फिगर्स में भी यूज होगा ये कॉन्सेप्ट. ओके लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ट्राइंगल है. ट्राइंगल हम सबको पता है, वी आर स्टडीइंग फ्रॉम क्लास 6. ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं. उसका बॉटम पे बेस होता है, बीच में सेंट्रल हाइट है, राइट. नाउ इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एंड पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ साइड्स. एंड एनीवे दिस इज द वर्ल्ड रिनोन्ड थिंग. सबको पता ही है कि एंगल्स जितने भी होते हैं ट्राइंगल के अंदर सबको ऐड अप करके 180 डिग्री बनता है. Yeah, then there are three kinds of triangles that you know. One is scalene, other is isosceles, and then there is equilateral. Scalene triangle बेटा वो होता है, scalene triangle is one जिसकी सारी sides different होती हैं. Yeah, then isosceles triangle वो होता है जिसकी two sides same होती हैं, and equilateral triangle वो होता है जिसकी सारी sides सेम होती है. तीनों की तीनों साइड सेम है. अगर मतलब एक साइड 10 है तो बाकी दोनों साइड्स भी 10 ही हैं, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर विद यू. लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वी हैव पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम बेसिकली कुछ भी नहीं है. पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है व्हिच इज रफली लाइक यू नो रेक्टेंगल, बट दिस रेक्टेंगल इज लिटिल ड्रंक एंड इज गोइंग ऑन वन साइड. एंड व्हाट एल्स वी कैन से हियर इज दैट दिस पैरेललोग्राम की एक स्पेशल खास बात यह है कि पैरेललोग्राम का जो नाम है दैट इज पैरेलल, ठीक है. वहीं से हमें इसका मतलब समझ में आता है कि इसकी जो साइड्स होती है बेटा, बोथ द साइड्स आर पैरेलल. ये साइड आपस में पैरेलल है, ये साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है. To distinguish, I have put 3 arrows in one of them. Now, it has 2 diagonals as you can see, ठीक है. अब ये diagonals जो होती हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं. diagonals मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. diagonals क्या होती है, जो फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. अब ये diagonals खुद को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो. तो टोटल 4 हिस्से हो गए इन दोनों diagonal के, राइट. अब इसका अगर कभी आपको पेरीमीटर निकालना है तो ये रेक्टेंगल की तरह ही चलता है, 2l + b. ओके अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट. दिस b इज नॉट फॉर ब्रेथ, इट इज बेस इनटू हाइट. कि भाई पैरेललोग्राम जिस बेस पे बैठा हुआ है वो बेस, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में वर्टिकली डिस्टेंस कितना है, दैट इज हाइट. यहाँ पे ब्रेथ मत लिख देना बेटा, ठीक है. दिस इज हाइट, इट हैज टू बी एट 90 डिग्री, ठीक है. सो दिस इज बेस इनटू हाइट. ओके now let's look on to the next part. And if you are thinking that we are not doing questions based on this, so I have already recorded one another video in which we have practiced questions, ठीक है. This is just an explanation video because कुछ बच्चों को problem थी concept में, so I'm recording this video for you. Now another figure that we have 2D figure here is a rhombus. Rhombus क्या होता है बेटा, rhombus is just like a square, but the condition is little different here. It has 2 diagonals which can be of different length. Okay, and another thing is that here you know diagonals meet at 90 डिग्री. ये जो diagonals है इसकी हमेशा 90 डिग्री पे मीट करती है, ठीक है. एंड these diagonals divide each other into 2 equal parts. जैसे पैरेललोग्राम में हमने देखा था दोनों diagonals एक दूसरे को आधी आधी बांट रही थी, है ना. यहाँ पे भी ये diagonals एक दूसरे को डिवाइड कर देती हैं. एंड अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो इट इज 4 into side बिकॉज इसकी सारी साइड्स बराबर है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. या now let's look on to the next one. नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, 3D कॉन्सेप्ट आ जाता है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट 3D कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसुरेशन. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 3D फिगर. 3D फिगर्स में हमारा क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर आने वाला है. these 5 figures are going to be there. Okay, अब लेट्स सी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर. क्यूब जो होता है बेटा, क्यूब एक रूबिक्स क्यूब से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो सब बच्चे उसके साथ खेलते हैं, ठीक है. और इसका क्या स्पेशल पॉइंट है कि इसके सारे फेसेस जो होते हैं वो बराबर होते हैं. किसी भी साइड से देख लो एक जैसा ही दिखाई देता है ये, ठीक है. So it has these 2 basic formulas that I'm going to list down here for you. अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो सारी साइड्स इसकी स्क्वायर जैसी हैं, सारी साइड्स बराबर हैं इसकी, ठीक है. तो इसका एरिया जो होता है 6
एस स्क्वायर होता है, बिकॉज स्क्वायर का भी नो साइड का स्क्वायर, और इसके 6 फेस हैं, ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे, सो टोटल 6 फेस है, 6s स्क्वायर। ओके, इफ यू टॉक अबाउट इट्स लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट हम काफी यूज करने वाले। लेटरल सरफेस एरिया होता है कि 4 दीवारों का एरिया, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें वी डोंट काउंट द रूफ, वी डोंट काउंट द फ्लोर। ओके, सो इसमें फिर 4 फेसेस बच जाते हैं, तो 4s स्क्वायर हो जाता है। Okay, if I talk about its volume, then its volume is very simple. It is side का cube. I hope this is clear to you. अगर कोई doubt हो तो please make sure you put it down in the comment section. Let's rub this out and look on to the next figure. Next figure हमारे पास है cuboid. Cuboid आप कैसे समझ सकते हैं बेटा? Cuboid वो होता है जो हमने एक क्यूब को मान लो स्ट्रेच कर दिया। अब इसमें लेकिन डायमेंशंस थोड़ी सी चेंज है। You can just imagine it like a hall. आप एक लंबे से हॉल में बैठे हो, ठीक है? तो हॉल के सामने एक फ्रंट, तो सामने स्टेज होता है और पीछे हमारी बैक साइड होती है, ऑडियंस बैठती है। सो मान लो ये स्टेज वाली साइड है और ये ऑडियंस वाली साइड है, और ये आपकी लेफ्ट वाली दीवार है, ये राइट वाली दीवार है, जो लंबी लंबी दीवारें होती है हमारी लेफ्ट राइट में, ठीक है? सो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो हॉल कितना लंबा है, ये लेंथ होगी उसकी, कितना ऊंचाई उसकी हाइट होगी, और कितना चौड़ा है वो उसकी ब्रेथ या विड्थ होगी, ठीक है? Now, if we talk about its lateral surface area, lateral surface area मतलब जहाँ पे 4 वॉल्स को काउंट करना है हमें, ठीक है? तो 4 वॉल्स में क्या हो गया, एक तो हमारी लेफ्ट वाली वॉल होगी। लेफ्ट वाली वॉल में आप इमेजिन करो कि कौन कौन सी साइड्स इंक्लूड हो रही है। एक तो लेंथ इंक्लूड हो रही है हॉल की, है ना, लेंथ। और इस जो हमारे साइड में रेक्टेंगल है, जो दीवार है, उसमें और कौन सी डायमेंशन है, एक तो लेंथ होगी और वो कितनी ऊंची है, हाइट। सो लेंथ इंटू हाइट हो गया, है ना? अब ऐसी 2 दीवारें, एक लेफ्ट में भी एक राइट में भी है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू एल इंटू एच, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट साइड, जो स्टेज वाली साइड है हमारे हॉल की, ठीक है? सो उसमें क्या है, ऑब्वियसली कि कितना चौड़ा हॉल है, तो हमारी विड्थ की बात हो रही है, ठीक है? एंड उस सामने वाले रेक्टेंगल में और कौन सी डायमेंशन है, वन इज विड्थ, अदर इज हाइट, कितना ऊंचा है वो हॉल वहां से भी, है ना? सो विड्थ इनटू हाइट, और ये भी कितनी बार है, 2 बार है, बिकॉज एक बार आगे एक बार पीछे है। सो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2h कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया, l प्लस b या l प्लस w, व्हाटएवर यू वांट टू राइट डाउन। आई एम राइटिंग डाउन b सो एज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है? सो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में छत, दैट इज आवर रूफ एंड द फ्लोर विल आल्सो बी इंक्लूडेड। अब अगर छत को इमेजिन करते हो तो उसमें कौन कौन सी डायमेंशंस है, एक तो वो कितनी लंबी है छत, है ना, लेंथ इंक्लूड हो रही है, और वो कितनी चौड़ी है छत, तो ब्रेथ इंक्लूड हो रही है, और उतना ही फ्लोर है, जितना लेंथ ब्रेथ रूफ का है उतना ही फ्लोर का है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, 2lb भी मुझे ऐड करना पड़ेगा बाकी 4 दीवारों में। सो व्हाट डज दिस फॉर्मूला बिकम्स, दिस बिकम्स 2 टाइम्स lb प्लस bh प्लस lh। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट इट्स डायगोनल, डायगोनल आपको पता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसकी डायगोनल का फॉर्मूला वेरी सिंपल होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। I hope that's clear with you. Let's look on to the next figure. Next figure हमारे पास क्या है, देखते हैं यहाँ पे। Next figure है हमारे पास स्पेयर। स्पेयर सर्कल से ही रिलेटेड है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमने इसको आप एक बॉल से कंपेयर कर सकते हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हाटएवर यू वांट टू कंपेयर इट। इसका एक सेंटर पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाता है, और बाहर आने तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो रेडियस है। ओके, इट हैज ओनली 2 बेसिक फॉर्मूलाज। वन इज योर टोटल एरिया, ठीक है, बाहर से जो गोल गोल एरिया है उसका, वो कितना है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। Okay, so that is one basic thing here. Now, okay, so one more thing I have to tell you, I'll tell you after we finish sphere, we'll come back to cuboid after this. Okay, now कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि स्फीयर को हाफ करके देते हैं, जिसे हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमी मींस हाफ, राइट? हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये सर्कल ऐसा ऊपर आधा हो गया, ठीक है? अभी इसकी वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगी हेमिस्फीयर की, मैं VH लिख रहा हूँ, तो पहले 4/3 पाई आर स्क्वायर थी, अब 2/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, पाई आर क्यूब, आई एम सॉरी, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है? बट इफ आई टॉक अबाउट इट्स एरिया, एरिया तो चलो 4 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इतना समझ में आ गया। बट जब हमने इसको बीच में से काट दिया, कट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में एक फ्लैट एरिया भी आ गया, जो पहले स्फीयर में इंक्लूडेड नहीं था। अब इस फ्लैट एरिया सर्कल जैसा है, तो ये पाई आर स्क्वायर है। तो जो हमारा गोल वाला आधा एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें हम फ्लैट वाला एरिया भी ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब ये टोटल कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, now one important thing that I had to tell you in the previous figure was this one. See, अगर आपको कोई क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, इस पे बेस्ड काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, I'll try to explain it to you, कि जैसे मान लो वो बोल रहा है कि एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स की कुछ थिकनेस दे रखी है। मान लो वो बॉक्स के अंदर जो वुड है या कुछ है, वो 1 सेंटीमीटर मान लो थिक है, ठीक है?
तो उसने बोला तुमसे मैं इसे आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो इट टू यू फ्रॉम वन साइड, इट ऑल्दो इट्स अ क्यूबॉइड, मैं क्यूबॉइड की एक ही साइड शो करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, फ्रंट साइड लेट्स से। सो ये उसकी लेंथ है, लेंथ मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। उसने बोला कि जो हम वुड यूज कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इधर भी थिक होगी, 1 सेंटीमीटर इधर भी थिक होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर की जो लेंथ है इट इज लेस, बाहर से दिखने में 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्या उसके अंदर भी 10 सेंटीमीटर लंबी जगह है? नहीं है, बिकॉज इट इज उसकी थिकनेस ने कुछ जगह ले ली, 1 सेंटीमीटर इधर से चला गया, 1 सेंटीमीटर इधर से चला गया। सो 8 सेंटीमीटर इज द इनर लेंथ। आई होप दिस कंसेप्ट इज अंडरस्टूड विद यू। सेम विद द हाइट, हाइट मान लो इसकी 4 सेंटीमीटर थी, 4 में से एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, अंदर कितना बच गया? सिर्फ 2 सेंटीमीटर हाइट बच जाएगा, ठीक है। सो कभी बार ऐसा क्वेश्चन होता है यू नो वेयर दे टेल यू कि भाई दीज आर द डायमेंशंस गिवन ऑफ द क्यूबॉइड एंड इट इज दिस सेंटीमीटर थिक, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल? मटेरियल मतलब वुड का बना है, तो वुड के वॉल्यूम कितने? इज नॉट आस्किंग द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, नीदर इज ही आस्किंग what is the volume inside, is asking volume of the material। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से हम इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे वो सर्कल वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दो, वैसे इसमें भी करते हैं कि बाहर वाली वॉल्यूम में से अंदर वाली वॉल्यूम माइनस कर देंगे। मतलब इस बड़े से क्यूबॉइड में से हमने खाली जगह हटा दी, खाली जगह हटा दी तो क्या बच गया? उसमें से मटेरियल बच गया। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो जैसे मैंने आपको लेंथ और हाइट की इनर लेंथ हाइट बताई है, वैसे आप विड्थ के साथ भी वैसा ही करेंगे, विड्थ को भी दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपकी इनर विड्थ या इनर ब्रेथ निकलेगी, ठीक है। नाउ दिस सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू योर स्फीयर आल्सो, बिकॉज स्फीयर में भी ऐसा हो सकता है, वो बोल सकता है कि वो हॉलो स्फीयर अंदर से खाली है, ठीक है। तब आप क्या करोगे? आप देखोगे कि भाई अंदर का रेडियस कितना है, बाहर का रेडियस कितना है। उसने मान लो ही टोल्ड यू यू नो दैट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज लेट्स से 10 centimeter, and he's saying you know the material of which the sphere is made is 1 centimeter thick, 1 सेंटीमीटर थिक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर जो रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता है। अंदर वाला रेडियस कितना रह जाएगा? सिर्फ 9 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो इससे आप अंदर की वॉल्यूम निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों वॉल्यूम निकाल लो, दोनों वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो, अगेन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ओके इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस बेटा ऐसे पूछे जाते हैं, डन दोस इन एक्सरसाइज वीडियो, कि कहीं पे कोई वॉल बनाई जा रही है, ठीक है। तो वॉल में उसने बता दिया कि भाई वॉल की ये डायमेंशन होगी, ये लेंथ ब्रेथ हाइट होगी, ठीक है। एंड देन ही इज आस्किंग यू भाई टेल अस यू नो हाउ मेनी ब्रिक्स हैव टू बी यूज्ड इन दिस वॉल, एंड ही विल आल्सो टेल यू द डायमेंशंस ऑफ द ब्रिक। सो कभी भी ऐसा नंबर वाला क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स और whatever, it is always capital volume divided by small volume। capital volume क्या है? volume of the bigger material, and small v is the volume of the smaller shape or whatever। so जैसे यहाँ पे volume of wall लिखेंगे आप, ठीक है, upon volume of brick, so that will give you the number of bricks। so कभी भी ऐसा नंबर निकालने वाला क्वेश्चन आता है, always bigger thing divided by smaller thing, that's the only concept that you need to keep in mind। alright, सो ये हो गया हमारा कोन पे। आई विल कम वंस वी आर डन विद सिलेंडर। सिलेंडर देखो क्या होता है बेटा, सिलेंडर कुछ भी नहीं है, हमने एक सर्कल ड्रॉ करा मान लो, ठीक है, और हमने क्या करा, उस सर्कल को एक्सटेंड कर दिया, उसे खींच दिया नीचे तक, ठीक है, लाइक आई स्ट्रेच्ड इट लाइक दिस। ओके सो दिस फॉर्म्स आवर सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर क्या है? सिलेंडर के अंदर सबसे पहले विल ड्रॉ दिस सेंटर थिंग व्हिच इज इट्स हाइट। ये कितना ऊंचा है, ये सिलेंडर कितना ज्यादा हमने उसे स्ट्रेच करा है, खींचा है, ठीक है। देन ऑफ कोर्स इट हैज रेडियस, सर्कल का ओरिजिनल रेडियस था, तो यहाँ पे रेडियस हो गया, यहाँ पे भी नीचे तक भी वही रेडियस चल रहा है, ठीक है। अब लेट्स सी सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू लर्न हियर। नाउ यू रिमेंबर दैट द आउटसाइड पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस वाज 2 पाई r। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इस सर्कल को खींच दिया, तो उसका जो सर्कमफेरेंस था उसको खींच खींच के ही तो हम नीचे तक लेके आए ना। कहाँ तक खींचा हमने उसे? h हाइट तक खींचा। सो इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, जो मतलब हमें गोल गोल सरफेस एरिया महसूस होता है सिलेंडर का ऑन टचिंग, दैट इज फाउंड आउट हाउ सर्कमफेरेंस कहाँ तक खींच रहे हैं हम उसको? हाइट तक खींच रहे हैं। सो 2 पाई r h टाइम्स हम उसे नीचे तक ले गए, सो दैट गिव्स अस द कर्व्ड सरफेस एरिया। Now let's talk about its total surface area। total surface area इसका क्या होता है? देखो ऊपर एक फ्लैट सरफेस है जो सर्कल का है, नीचे भी एक फ्लैट सरफेस है जो सर्कल का है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो काउंट करना ही करना है, 2 पाई आर एच, यस, प्लस फ्लैट सरफेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। और कितनी बार? एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो 2 बार। तो अब 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास? h प्लस आर। सो दिस गिव्स यू द फॉर्मूला फॉर टीएसए। कुछ रटने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूलाज निकल रहे हैं, राइट।
लेट्स टॉक अबाउट इट्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए आप क्या इमेजिन करो, वॉल्यूम के लिए आप इमेजिन करो कि आपने क्या करे, बहुत सारे कॉइन्स लिए और एक के बाद एक कॉइन लगाते गए, ठीक है। सो नाउ व्हाट कैन आई से, ऑल दीज कॉइन्स हैव टेकन दिस स्पेस इन बिटवीन, राइट। ये कॉइन्स ने ये सारा स्पेस ले लिया। अब कॉइन का एरिया जो था, दैट वाज द ऑफ कोर्स द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच वाज पाई आर स्क्वायर, है ना। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पाई आर स्क्वायर, उसके नीचे एक और पाई आर स्क्वायर, 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 कहां तक, एच हाइट तक। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, पाई आर स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स, एच टाइम्स, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट हियर। या now this gives you the volume of this cylinder. Now what if I do one thing here, cylinder यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है, nothing more nothing less. What if I divide this cylinder into what, I'll tell you. ये बेस हो गया, ठीक है। अब मैं सिलेंडर को, let's say I'm dividing it like this, here and from here to here. What do you think कितने पार्ट्स में हमने सिलेंडर को डिवाइड करा है? I'll tell you, we have divided it into 3 parts. आइडियली अगर आप ऐसे सिलेंडर को डिवाइड करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। Now if you pay attention, the central part of the cylinder is looking like what? Central part is looking like a cone. ओके, सो यहीं से हमारे कोन का बर्थ होता है, या फिर हम इसे रिलेट कर सकते हैं अपने सिलेंडर के कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो हमारे सिलेंडर की हाइट रही होगी वही हमारे कोन की हाइट हो जाएगी, जो हमारे सिलेंडर का रेडियस था वही हमारे कोन का भी रेडियस है। सो नाउ आई कैन टेक यू टू कोन, दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं सिलेंडर पहले कराऊंगा, ठीक है। लेट्स गो टू कोन। Here we have our cone. अब कोन में एक चीज नहीं ऐड हो जाती बेटा, हाइट तो सिलेंडर की हाइट h is written in the center, ठीक है, रेडियस is written down there। एक हमने यहाँ पे l ऐड कर दिया, जो हमने स्लांट लाइन ऐड करी थी ना, दैट इज l। अब इस स्लांट लाइन का नाम भी ऐसा ही है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। Now if you imagine it is like ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है, इट्स जस्ट लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई, इट्स राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। सो l जो हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला। Now let's talk about its area। एरिया में क्या है, एक तो कोन वाला जो ट्रायंगुलर एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है उसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, which is how much, पाई आर एल। व्हाट इज दैट, पाई आर एल। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं, टोटल सरफेस एरिया में देखो नीचे फ्लैट सर्कल है और ऊपर पाई आर एल है। तो पाई आर एल में अगर हम क्या ऐड कर दें, वी ऐड पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, अंदर एल प्लस आर बच जाएगा। सो दिस गिव्स यू द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम देखो हमने क्या देखा था, कोन कहां से निकला है, सिलेंडर से निकला है। कब, जब हमने सिलेंडर का 1/3 कर दिया, तो सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 कोन की वॉल्यूम हो जाती है। सो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच वाज पाई आर स्क्वायर एच। सो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। I hope you have understood this concept. So in this video, we are doing this much only. अगर आपको कोई भी doubt है, if you have any kind of feedback, you can put it down in the comment section, and you make sure you watch the next video जिसमें मैंने इस पे based questions कर रखे हैं, most important questions related to examinations, ठीक है। So आप वो video definitely देखना। अगर आपने इस video को अभी तक like नहीं करा है, comment नहीं करा है, अपने friends के साथ share नहीं करा है जो study करते हैं, तो make sure you do that। It encourages us and we hope to reach out to more students and help them in studying. Till then, this is Darjinder, your mentor for mathematics. I'll see you in the next video.